अब देखते हैं BFM यूनिट 4 इंपॉर्टेंट एलसी केस स्टडीज फॉर एग्जाम, इसमें पार्ट 2 देखेंगे। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 देखा है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एलसी केस स्टडीज मैक्सिमम क्वेश्चंस। ठीक है, केस स्टडी ऊपर जो हमने अभी देखा है उस पे क्वेश्चन है सर। MS Indian Import Limited places an order of 1000 units of machinery parts with MS Global Export Inc. USA. An irrevocable letter of credit is opened by Indian Imports Bank PNB subject to UCP 600. The LC requires a commercial invoice, packing list and full set of clean shipped on board bill of lading. Global Export ships the goods and presents the document to the negotiating bank. The documents are found to be fully complied with the terms of LC. However, upon the goods arrival, Mr. MS India Imports discovers that the machinery parts are inferior quality and not as per the original sale contract. They immediately obtain a court injunction restraining PNB from making payment under the LC. जो हमने ऊपर केस देखा था सर, सेम केस स्टडी है यहाँ पे। इंडियन कंपनी ने सर कुछ ऑर्डर करना था, इंडिया के कंपनी को सर कहां से, यूएसए से मशीनरी ऑर्डर किया है। सभी डॉक्यूमेंट सभी सभी कंप्लाई है सर। ठीक है, यूएसए के जो एक्सपोर्टर ने सर सभी डॉक्यूमेंट कंप्लाई सबमिट कर दिया है बैंक से, गुड्स भी शिप हो गए, सभी चीज हो गया। इंडिया में गुड्स आने के बाद जो इंपोर्टर है उसको लगा कि भाई ये मशीनरी ठीक नहीं है, फॉल्टी है। उस केस में ये जो इंडिया का इंपोर्टर है वो कोर्ट में जाके ऑर्डर लेके आया पेमेंट स्टॉप करने के लिए। अब इसमें क्या बोला है, एज पर द एलसी इश्यूइंग बैंक पीएनबीज करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन इन दिस सिचुएशन इज, क्या है सर करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन, refuse payment to the negotiating bank as the goods are non-conforming to the underlying contract. सर ये कॉन्ट्रैक्ट से तो बैंक को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड ईएलसी दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो ये इज रॉन्ग। Honor the documents immediately as they are compliant, ignoring the court injunction to the uphold UCP 600। सर आपका कोर्ट ना लॉ में यूसीपी से ज्यादा बड़ा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। Withhold payment until the court injunction is lifted, as national courts are above the UCP। Yes, sir. C is correct answer. Debit the importer's account immediately and recover the funds। ये तो सर नहीं, ये C is correct answer। Case study, MS Global Imports Inc. based in USA places an order of the machinery with MS Techno Exports Limited based in India. To secure the transaction, Global Imports Inc. approaches its bank, New York International Bank, to issue a letter of credit in favor of Techno Exports Limited. The New York International Bank issues an irrevocable LC and sends it to its correspondent bank in India। बैंक कौन सी है सर, मुंबई मेट्रोपॉलिटन बैंक। मुंबई मेट्रोपॉलिटन बैंक authenticates authenticates the LC and advises it to the Techno Export Limited to provide an additional layer of security and assurance of payment to Techno Export Limited. Mumbai Metropolitan Bank also adds confirmation to the LC, becoming the confirming bank. Techno Exports Limited ships the machinery as per the LC terms and prepares the stipulated documents. They present these documents to Mumbai Metropolitan Bank. The bank checks the documents, finds them in full compliance with the LC terms, and pays Techno Export Limited, Mumbai Metropolitan Bank, then forwards the document to New York International Bank and seeks reimbursement for the payment made.
ऐसे टाइप का ही क्वेश्चन आता है सर एग्जाम में, बड़ा केस स्टडी रहता है। तो क्या है सर, ग्लोबल इंपोर्ट आईएनसी, यूएसए की पार्टी क्या है सर, इंपोर्टर है, यानी बायर है। क्या है, बायर। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया की जो पार्टी है सर, टेक्नो एक्सपोर्ट। मैं इंडिया और ये यूएसए बोलूंगा क्योंकि बड़ा नाम है। इंडिया की पार्टी क्या है सर, सेलर। इंपोर्टर ने सर एलसी इश्यू करने के लिए बोला, जो है यूएसए की बैंक। बैंक कौन सी है सर, न्यूयॉर्क इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट सर, कौन सी एलसी है सर, इरोकेबल एलसी। इरोकेबल एलसी मतलब सर विदाउट कंसेंट ऑफ सेलर, इन केस कंफर्मिंग बैंक इज देयर, आप उसको चेंज या अमेंड नहीं कर सकते इन इरिवोकेबल एलसी। तो यूएसए की बैंक ने सर एलसी इश्यू की। एलसी इश्यू करने के बाद वो कहां पे आई सर, इंडिया के मुंबई के बैंक में आई। कहां पे, मुंबई, मुंबई मेट्रोपॉलिटन बैंक। क्या बोला सर आगे, इसने ऑथेंटिकेट किया है एलसी। क्या किया, ऑथेंटिकेट एलसी कर दिया। ऑथेंटिकेट करके ऑथेंटिकेट्स एलसी। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है सर, एंड एडवाइसेस इट टू टेक्नो एक्सपोर्ट। टेक्नो एक्सपोर्ट मतलब सेलर को इसको एडवाइस कर दिया सर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी एंड एश्योरेंस ऑफ पेमेंट टू टेक्नो एक्सपोर्ट। टेक्नो एक्सपोर्ट्स को क्या, इंडिया के जो सेलर को पार्टी को एडिशनल एश्योरेंस चाहिए था और सिक्योरिटी चाहिए था, इसलिए ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन जो बैंक है, इसने क्या किया सर, कंफर्म भी किया है एलसी। क्या किया सर, कंफर्म। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है सर, ये कंफर्म हो गया। टेक्नो एक्सपोर्ट्स लिमिटेड शिफ्ट द मशीनरी एज पर एलसी टर्म्स एंड प्रिपेयर्स द, शिफ्ट कर दिया सभी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके, कहां पे सबमिट किया सर, मुंबई मेट्रोपॉलिटन बैंक के पास। बैंक ने डॉक्यूमेंट चेक किया सर, डॉक्यूमेंट वो सभी कंप्लाइंट निकला, उसके बाद में उसने सर पेमेंट कर दिया टेक्नो एक्सपोर्ट्स को। तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन बैंक उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर दिया और रिएम्बर्समेंट किया। सर यहाँ पे एक और चीज है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन बैंक ने सर कंप्लाइज करके चेक किया और पेमेंट भी कर दिया। क्या किया सर, पेमेंट कर दिया। ये काम किसका होता है सर, निगोशिएटिंग बैंक का। किसका सर, निगोशिएटिंग बैंक। तो मेट्रोपॉलिटन बैंक यहाँ पे सर कंफर्मिंग बैंक, ऑथेंटिकेशन, एडवाइजिंग बैंक एंड निगोशिएटिंग बैंक, तीन तीन काम कर रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा है सर, इन दिस एलसी ट्रांजेक्शन Mumbai Metropolitan Bank has played multiple roles. Which of the following combination correctly identifies all the roles performed by Mumbai Metropolitan Bank in this case? First दिया है सर एडवाइजिंग बैंक एंड निगोशिएटिंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक और निगोशिएटिंग बैंक तो है, बट सर एक्स्ट्रा कंफर्मिंग बैंक भी है, ये रॉन्ग है। सी में क्या है सर, एडवाइजिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक एंड निगोशिएटिंग बैंक तीनों भी है। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट केस स्टडी, एमएस ग्लोबल ट्रेड्स इंडिया एक्सपोर्ट्स लेदर गुड्स टू यूरोस्टाइल लिमिटेड फ्रांस। यूरोस्टाइल requests its bank BNP Paribas to issue revocable letter of credit in favor of global trades through ICICI Bank Mumbai as the advising bank. After global trader ships the goods and submits documents to ICICI Bank for negotiation, BNP Paribas sends a cancellation notice to ICICI Bank before the documents are received by it. ICICI Bank, unaware of the cancellation, has already negotiated the documents and paid the exporter. Who is responsible for reimbursing ICICI Bank for payment already made to the export? क्या है सर सिचुएशन,
ग्लोबल ट्रेड्स इंडिया, ये क्या है सर? एक्सपोर्टर। ग्लोबल इंडिया क्या है? एक्सपोर्टर। ठीक है। हीरो स्टाइल लिमिटेड, हीरो स्टाइल लिमिटेड क्या है सर? इंपोर्टर इन फ्रांस। इंपोर्टर इन फ्रांस। ठीक है, ये इंडिया में है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया है? यूरोस्टाइल रिक्वेस्ट इट्स बैंक बीएनपी। यूरोस्टाइल ने किसे रिक्वेस्ट किया है सर? उसके बैंक को। कौन सा है सर? बीएनपी परिबास, कि आप एलसी इश्यू करो। कौन सी सर? रिवोकेबल एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, इन फेवर ऑफ ग्लोबल ट्रेडर एक्सपोर्टर को। थ्रू विच बैंक? थ्रू विच बैंक? आईसीआईसीआई बैंक। एडवाइजिंग बैंक कौन सी है? आईसीआईसीआई बैंक एज अ एडवाइजिंग बैंक, इसने इसे एडवाइस कर दिया। यहां तक ठीक है। तो शिपमेंट कर दिया इन्होंने, किसने? ग्लोबल एक्सपोर्ट ने यहाँ पे शिपमेंट कर दिया सर। शिपमेंट चला गया इधर फ्रांस को। पैरेलली डॉक्यूमेंट जिसने आईसीआईसीआई को सबमिट कर दिया। आईसीआईसीआई ने क्या किया सर? यहाँ पे डॉक्यूमेंट कंप्लाई था, पेमेंट कर दिया। और ये इधर डॉक्यूमेंट भेजने ही वाला था कि बीएनबी परिवास ने एलसी कैंसिल हो गया करके नोटिस दे दिया आईसीआईसीआई बैंक। अब इस सिचुएशन में जो आईसीआईसीआई बैंक ने रियम्बर्स किया है, इस सिचुएशन में सर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा आईसीआईसीआई को पेमेंट देने, जिसने ऑलरेडी एक्सपोर्टर को पेमेंट किया है? ऑप्शन ये क्या है सर? बीएनपी परिबास इज नॉट लाइबल सिंस द एलसी वाज रिवोकेबल एंड हैज बीन कैंसल्ड। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। बाकी के देखेंगे अब सर क्या है। Eurostyle Limited buyer is liable as initiated the एलसी रिक्वेस्ट। ये भी नहीं है सर, क्योंकि सर एलसी के कॉन्ट्रैक्ट में सर पेमेंट सर इश्यूइंग बैंक करता है। एलसी कॉन्ट्रैक्ट, एलसी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिफरेंट रहता है सर कॉन्ट्रैक्ट से, ये तो आप बात समझते हैं। सेकंड सर, इन दोनों का पेमेंट का ये कॉन्ट्रैक्ट अलग है और ये कॉन्ट्रैक्ट अलग है, तो सर बायर भी लायबल नहीं है इसमें। बीएनबी परिवार इश्यूइंग इज लायबल टू रिएम्बर्स आईसीआईसीआई बैंक, नहीं सर, क्योंकि क्या है ना, रिवोकेबल ऐसे वो कभी भी कैंसिल कर सकता है। सी इज ऑल्सो रॉन्ग। ICICI Bank bears the loss because it acted without confirmation. ये सर ये भी रॉन्ग है। ये इज करेक्ट। क्यों? बीएनबी परिवार सर लाइबल नहीं है क्योंकि एलसी रिवोकेबल है। और सर यहाँ पे भी रहता ना रिवोकेबल, ठीक है, यहाँ पे भी रिवोकेबल रहता और आईसीआईसीआई का सर ये नहीं रहता, कंसेंट नहीं रहता, तो सर ये भी रॉन्ग हो जाता। ये इज करेक्ट आंसर। Case study 10. On November 5, 2024, an importer client approached XYZ Bank with a complaint. The client stated that their overseas supplier had not received a letter of credit that XYZ Bank had opened over a month earlier on October 2, 2024. बैंक का इंपोर्टर क्लाइंट आया है सर बैंक के पास। कौन सी बैंक है? एक्स वाई जेड बैंक, जिसने एलसी इश्यू की थी। ठीक है, उसका कंप्लेंट क्या है कि जो एलसी ओपन किया गया था 2 अक्टूबर 2024 पे, वो एलसी वहां पे ओवरसीज सप्लायर को मिली नहीं करके। ये है सर इस पैराग्राफ का मीनिंग। XYZ bank promptly contacted to the advising bank. The advising bank admitted it had received the ELC but failed to advise it to the beneficiary and stated it was now doing so. Because of this delay, the beneficiary now refuses to ship the goods unless the contract price is increased by 1000.
The importer has filed a formal complaint stating that opening XYZ bank is responsible for the delay and the resulting financial loss. जैसे कि 5 नवंबर पे इंपोर्टर बैंक के पास आया था कि उसका जो एलसी इशू किया था XYZ बैंक ने अक्टूबर टू 2024 में, वो ओवरसीज सप्लायर को मिला नहीं। तुरंत XYZ बैंक कांटेक्ट किया एडवाइजिंग बैंक को, तो एडवाइजिंग बैंक ने एडमिट किया कि उनको एलसी रिसीव हुई है, बट वो एडवाइस करने को, बेनिफिशियरी को एडवाइस करने में फेल हो गए। बट अब वो रेडी है एडवाइस करने के लिए, बट बेनिफिशियरी अब मान नहीं रहा है गुड शिप करने के लिए, और जो उसका प्राइस है वो 1000 यूएसडी डॉलर से बढ़ा के मांग रहा है। तो इसलिए इंपोर्टर ने एक फॉर्मल कंप्लेन कर दी ओपनिंग बैंक जो इशूइंग बैंक XYZ के खिलाफ कि आपकी वजह से आप रिस्पॉन्सिबल हो मेरे लॉसेस की वजह से। इज द इंपोर्टर करेक्ट, ये बताना है। एज पर आर्टिकल आर्टिकल 9 ऑफ यूसीपी 600, ये आर्टिकल हमें बताता है कि सपोज एडवाइजिंग बैंक को एडवाइज नहीं करना है, एडवाइजिंग बैंक को एडवाइस नहीं करना है एलसी, तो उसे इश्यूइंग बैंक को बताना है कि हम एडवाइस नहीं कर सकते। इस केस में एडवाइजिंग बैंक इश्यूइंग बैंक को इंटीमेट करने में फेल हो गया तो इश्यूइंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल 9 क्या कह रहा है सर? इफ द एडवाइजिंग बैंक if the advising bank is not in position to advise LC, to advise LC, यहाँ नीचे लिखता हूं अब, for any reason it should inform accordingly to issue LC opening bank immediately, LC opening bank को immediately उन्होंने बताना चाहिए, यूसीपी 600 के आर्टिकल 9 में कहा गया है। और इस केस में सर अब इश्यूइंग बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी क्योंकि एडवाइजिंग बैंक ने इन्फॉर्म नहीं किया है। फर्स्ट ऑप्शन का यस बिकॉज द ओपनिंग बैंक इज लाइबल फॉर द एक्शन और फेलियर्स टू द एडवाइजिंग बैंक इट अपॉइंट्स, नहीं सर ये रॉन्ग है। एडवाइजिंग बैंक ने चूज किया है ये अपना एडवाइज सॉरी इश्यूइंग बैंक ने चूज किया है एडवाइजिंग बैंक, बट अब उसके एक्ट के लिए इश्यूइंग बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। ठीक है, ये है तो एलसी ओपनिंग बैंक सर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे उसने चूज किया है एडवाइजिंग बैंक, बट एडवाइजिंग बैंक एक्ट नहीं कर रहा है, उसके लिए इशूइंग बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आर्टिकल 37 में कहा है। ऑलरेडी हमने ये केस स्टडी मैकमिलन बुक के डिस्क्रिप्शन में, मैकमिलन बुक के जो केस स्टडी है मैंने उसका वीडियो बनाया, उस पे उसमें है सर डिटेल में। No, because the opening bank is not responsible for the failure of the advising bank to carry out its instruction. B is correct. Yes, but the advising bank is solely responsible for the loss faced by the importer. C भी wrong है और D भी wrong है. B is correct answer. Case study 11. An ELC stipulates insurance policy certificate for 110% of CIF value, covering warehouse to warehouse risk. Bank B negotiates document which include a commercial invoice 50,000 का है, a ocean bill of lading evidencing shipment date क्या है सर? October 15, 2024, an insurance certificate for USD 55,000 dated October 18, 2024. The documents are forwarded to the issuing bank under the LC. Which of the following statement is correct regarding the presented documents? ये ऑप्शन है सर। क्या है सर केस स्टडी में? एलसी में स्टिपुलेट किया है जो इंश्योरेंस पॉलिसी और सर्टिफिकेट है वो 110% ऑफ सीआईएफ वैल्यू है। यानी सपोज सर
आपका 10,000 जो है वैल्यू रहेगा इनवॉइस का, तो इसको आपको प्लस 10% करके आपको इंश्योरेंस कवर लेना है। कहां से कवर हुआ है सर? कवरिंग वेयर हाउस टू वेयर हाउस रिस्क हुआ है। बैंक बी ने निगोशिएट किया है डॉक्यूमेंट्स, उसमें है इनवॉइस का वैल्यू 50,000, और कहां से शिप हुआ था सर? ये कौन से डेट को शिप हुआ था? अक्टूबर 15 को, और इंश्योरेंस की डेट 55,000, ये 110% सही है। मतलब जो 110% ऑफ इनवॉइस वैल्यू लेना है ये ठीक है सर, क्योंकि 50,000 का 10% 5,000, यानी 55,000 इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है। बट इंश्योरेंस का डेट है सर 18 अक्टूबर। ये डेट है सर शिपमेंट के बाद का डेट है। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो है, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट डेट इज आफ्टर शिपमेंट डेट। और सपोज 16 डेट को कुछ हो गया तो, क्योंकि इंश्योरेंस तो इफेक्टिव 18 डेज से, तो ये डॉक्यूमेंट सर डिस्क्रिपेंट है। वैल्यू 110% ठीक है, 110% जो इंश्योरेंस चाहिए सीआईएफ वैल्यू का वो सही है, बट जो इफेक्टिव डेट है इंश्योरेंस का वो 18 अक्टूबर है, शिपमेंट के बाद का डेट का है। कोई भी इंश्योरेंस डेट ऑन शिपमेंट, जिस दिन शिपमेंट हुआ उस दिन या उसके पहले का चल जाएगा। या ये 18 अक्टूबर का जो डेट है ना सर, इंश्योरेंस का डेट, इसमें मेंशन होना चाहिए कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी इफेक्टिव फ्रॉम शिपमेंट डेट, इफेक्टिव फ्रॉम शिपमेंट डेट ऐसे मेंशन किया तो भी चलेगा। यहां लिखता हूं मैं, ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ये है 18 अक्टूबर की, और शिपमेंट हुआ है 15 अक्टूबर का। ये डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंट है, क्योंकि इंश्योरेंस जो है शिपमेंट के बाद का डेट का है। इन केस ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है इसमें मेंशन होता इंश्योरेंस इज कवर्ड फ्रॉम, इंश्योरेंस इज कवर्ड फ्रॉम शिपमेंट डेट और 15 अक्टूबर, तो ये सर डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट नहीं होता। इसमें कुछ मेंशन नहीं किया है, ये डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इंश्योरेंस सर कब से चाहिए? शिपमेंट डेट से होना चाहिए, एज पर आर्टिकल 28 उस पे दिया गया है। 110% आपका सीआईएफ वैल्यू चाहिए, और इंश्योरेंस भी सर आपका शिपमेंट डेट से होना चाहिए, या शिपमेंट डेट से नहीं रहा तो डिस्क्रिपेंट रहेगा। तो डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लाइंट, कंप्लाइंट नहीं है सर। द डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लाइंट, यहाँ पे भी कंप्लाइंट नहीं बोला है, कंप्लाइंट नहीं है क्योंकि इंश्योरेंस डेट बाद का है। द डॉक्यूमेंट कंटेन अ डिस्क्रिपेंसी बिकॉज द इंश्योरेंस अमाउंट इज इनसफिशिएंट बीइंग लेस देन रिक्वायर्ड। ये भी गलत है, क्योंकि सर आपका जो अमाउंट है वो 110% ऑफ सीआईएफ वैल्यू है। डिस्क्रिपेंस इस वजह से है कि इंश्योरेंस डेट की वजह से। द डॉक्यूमेंट कंटेन अ डिस्क्रिपेंसी बिकॉज द इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट इज डेटेड लेटर देन द डेट ऑफ शिपमेंट, तो डी इज करेक्ट आंसर है। ये डिस्क्रिपेंस डॉक्यूमेंट है, ठीक है।